हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की ड्राइंग एंड पेंटिंग यूनिट 7 जिसका नाम है केव आर्ट जोगीमारा अजंता बाग शीतलवासल एंड सिरिरिया केव। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपके एग्ज़ाम्स में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हम पहले इंग्लिश में करेंगे, उसके बाद हम हिंदी में करेंगे। What are cave paintings? Indian paintings can be broadly classified as murals and miniatures. Murals are large works executed on the walls of solid structure, as in the Ajanta caves and the Kailashnath temple in Ellora. Miniature paintings are executed on a small scale of books or albums on presentable materials such as paper and cloth. Prime example are the Rajasthani and Mughal miniatures. Mural paintings and cave paintings. The work on the walls or a solid structure are referred to as murals. These have existed in India since ancient times and can be dated between 10th century BC and 10th century AD. The evidence of such paintings can be found at several locations in India. भारतीय चित्रकला को मोटे तौर पर भित्ति चित्र और लघु चित्र में वर्गीकृत किया जाता है। भित्ति चित्र ठोस संरचनाओं की दीवारों पर की गई है विशाल आकृतियाँ होती हैं, जैसे अजंता की गुफाएं और एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर। लघु चित्र पुस्तकों या एल्बमों के लिए कागज़ और कपड़े जैसी सामग्रियों पर छोटे पैमाने पर बनाए जाते थे। इसके प्रमुख उदाहरण राजस्थानी और मुग़ल लघु चित्र हैं। भित्ति चित्र और गुफा चित्र दीवारों या किसी ठोस संरचना पर की गई कलाकृतियों भित्ति चित्र कहलाती हैं। ये भारत में प्राचीन काल में से मौजूद हैं और इसका समय 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। The beauty and the exquisiteness of mural paintings can be seen in places like Ajanta, Armalya Cave, Ravan Chhaiya Rock Shelter, Bagh Cave, Sheetalwasal Cave and Karachi. Most of the mural paintings are either in natural cave or in rock-cut chambers. The paintings follow a theme, the most common being Hindu, Buddhist and Jain. Apart from this, mural paintings were also made to adorn many modern promise. As example of such as work can be seen in the ancient theatre rooms in Jogimara caves. Technique of mural paintings. The technique and process of painting Indian wall paintings such as been discussed in special chapter of Vishnu Dharma Mantram, a Sanskrit text of 5th and 6th century. भित्ति चित्रों की सुंदरता और उत्कृष्टता अजंता बाग गुफाएं, शीतलवासल गुफा और एलोरा के कैलाश मंदिर जैसे स्थानों पर देखी जा सकती है। भित्ति चित्र या तो प्राकृतिक गुफाओं में या शैलकृत कक्ष में हैं। यह चित्र किसी न किसी विषय वस्तु पर आधारित होते हैं, जिसमें सबसे आम हिंदू और बौद्ध और जैन हैं। जिसके अलावा भित्ति चित्र किसी भी सांस्कृतिक परिसर को सुशोभित करने के लिए भी बनाए जाते थे। इस तरह के एक उदाहरण जो जोगीमारा गुफा के प्राचीन नाट्य कक्ष में देखे जा सकता है। भित्ति चित्रों की तकनीक। भारतीय भित्ति चित्र बनाने की तकनीक और प्रक्रिया भी 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा के संस्कृत ग्रंथ विष्णु धर्मांतरण के एक विशेष अध्ययन में चर्चित की गई है। Most of the colors were locally available. Brushes were made up from the hair of animals such as goat, camel, mongoose, etc. The group was coated with an exquisitely thin layer of lime plaster over which paintings were drawn in watercolors. Fresco method. The painting were done when the surface wall is still wet. That the pigments go deep inside the wall surface. The other method of painting is known as tempera or frescocio.
It is a method of painting on the lime plastered surface which has been allowed to dry first, then retouched with fresh lime. On the surface thus obtained, the artist proceeds to sketch out his composition. The first sketch was drawn by experienced hand and subsequently corrected in many places with a strong black or deep brown line when the final ड्राइंग वॉज एडेड। अन्य स्तर पर उपलब्ध हैं ब्रश बकरी, ऊँट, नेवले आदि जानवरों के बालों से बनाए जाते थे। जमीन पर चूने के प्लास्टर की एक बेहद पतली परत चढ़ाई जाती थी जिस पर पानी के रंगों से चित्र बनाए जाते थे। असली फ्रेस्को विधि में चित्र तब बनाए जाते थे जब की दीवार गीली ही होती थी ताकि रंग दीवार की सतह तक गहराई तक पहुंच जाए। चित्रकला की दूसरी विधि को टेम्परा या फ्रेस्को सेको कहते हैं। जोगीमारा केव पेंटिंग्स। इट इज़ एन आर्टिफिशियली कार्व्ड आउट cave located in Satluj district of Chhattisgarh. It is dated back around 1000 to 300 BC and has few paintings and inscriptions of a love story in Brahmi script. The cave painting is said to be an attachment to amphitheater and the painting were made to decorate the room. Paintings are of dancing couples, of animals like elephants and fish. The painting have a distinct and red outline. Other colors like white, yellow and black were also found. Rock cut theatre of Sitaba is also located nearby. A couple dancing over a lily flower or nearby a lily flower. This painting relates to the love story of Santanuka and Devadina described in the Brahmi descriptions. जोगीमारा गुफा चित्र। यह छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित एक कृत्रिम रूप से तराशी हुई गुफा है। इसका निर्माण लगभग 1000 से 300 ईसा पूर्व हुआ था और इसमें ब्राह्मी लिपि में प्रेम कथा के रूप में चित्र और शैललेख हैं। कहा जाता है कि यह गुफा रंगभूमि से जुड़ी हुई थी और यह चित्र उस कमरे को सजाने के लिए बनाए गए थे। चित्रों में नृत्य करते युगल, हाथी और मछली जैसे जानवर देखे गए हैं। चित्रों की रूपरेखा लाल रंग की है। सफ़ेद, पीले और काले जैसे अन्य रंगों का भी उपयोग किया गया है। पास ही सीता बेगा का शैलकृत नाट्य गृह भी स्थित है। चित्र में एक युगल एक लिली के फूल पर या लिली के फूल के पास नृत्य करते हुए दिखाई देता है। यह अक्सर ब्राह्मी शिल्पलेखों में वर्णित शांतनुका और देवदीना की प्रेम कहानी से। अजंता केव paintings are one of the oldest serving murals of Indian subcontinent. Ajanta cave were carved between 2nd century BC to 5th century AD out of volcanic rocks. It consists of a set of 29 caves carved in an horseshoe shape. Murals in cave number 9 and 10 belong to the Shunga period. The rest belong to the Gupta period. The painting in cave number 1 and 2 are the most recent of the cave in Ajanta. Most themes of these paintings range from Jataka stories to the life of Buddha. Outline of figures in red orange with contrast of brown, black and deep red. Painting of various bodhisattvas in Tribhang pose in cave number 1. Vajrapani, Anjusri and Padmapani. The dying princess in cave number 16. A beautiful description of a female beauty in the painting of Maya Devi. ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो इस केव में, अजंता केव में और किन किन नंबर्स में बनाई गई थी। केव नंबर्स। अजंता गुफा चित्र भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने जीवंत भित्ति चित्रों में से एक है। अजंता गुफा 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच ज्वालामुखीय चट्टानों से उकेरी गई थी। इसमें 29 गुफाओं का एक समूह है जो घोड़े की नाल के आकार में उकेरी गई हैं।
गुफा संख्या 9 और 10 के भित्ति चित्र शुंग काल के हैं, जबकि शेष गुप्ता काल के हैं। गुफा नंबर 1 और 2 के चित्र अजंता की गुफाओं में सबसे हाल के हैं, यानी अभी बनाए गए हैं, रिसेंट। जिस चित्रों के सामान्य विषय जातक कथाओं से लेकर बौद्ध के जीवन तक हैं। आकृतियों की रूपरेखा लाल गेरुए रंग से है, जिसकी आकृति भूरे, काले या गहरे लाल रंग की है। गुफा संख्या 1 में त्रिभंग मुद्रा में विभिन्न बोधिसत्वों के चित्र हैं, वज्रपाणि, मंजूश्री और पद्मपाणि। गुफा संख्या 16 में मरती हुई राजकुमारी के चित्र मिलते हैं। द बाघ केव are a group of 9 rock-cut monuments situated among the southern slope of Vindhya in Bagh town of Dar district, state in central India. The Bagh have perpendicular sandstone rock face of a hill on a far bank of seasonal stream, the Badami. The painting on the wall and ceiling of the Vihar of Bagh, the fragments of which are still visible in Cave 3 and Cave 4. Cave 2 is the best preserved cave, also known as Pandava Cave. The ground prepared was a reddish brown and thick mud plaster laid out on the wall and ceiling. Over the plaster, the lime liming. Some of the most beautiful paintings were on the walls of the Patroko of Cave number 4, known as Rang Mahal, has beautiful murals on the wall describing Buddhist Jataka tales. बाघ गुफाएं मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले, जिसका कंद पर्वत की दक्षिणी प्रांत में 9 शैलकृत स्मारकों की एक समूह है। बाघ गुफा बागनी नाम एक मौसमी नदी के सुकुट किनारे पर स्थित एक पहाड़ी के लंबवत बलुआ पत्थर की चट्टान है। विहार की दीवारों और छतों पर चित्रकारी, जिसके अवशेष आज भी गुफा 3 और गुफा 4 में दिखाई देते हैं। गुफा 2 सबसे अच्छी तरह संरक्षित गुफा है, जिसे पांडव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। दीवारों और छतों पर लाल भूरे और मोटे मिट्टी के प्लास्टर से ज़मीन तैयार की जाती थी। प्लास्टर के ऊपर चूने की परत चढ़ाई जाती थी। कुछ सबसे सुंदर चित्रकारी गुफा 4 के बरामदे की दीवारों पर थी। गुफा संख्या 4, जिसे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी दीवारों पर बौद्ध जातक कथाओं को दर्शाते हुए सुंदर भित्ति चित्र हैं। शीतलवासल dated from 1st century BC to 10th century AD and located in Tamil Nadu. The paintings are not only on the wall but also on the ceiling and pillars. The paintings are with the theme of Samavarana preaching halls. Pallava king Mahendravarman I exhibited the temple. Pandya rulers renovated the shrine in 7th century. The medium used for painting was vegetable, animal oils or dyes, and thin wet lime plaster. Colors included yellow, green, orange, blue, black and white. सिंतलवासल की गुफा पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक और तमिलनाडु में स्थित ये गुफा है। चित्र केवल दीवारों पर ही नहीं बल्कि छत और स्तंभों पर भी किए गए हैं। यह चित्र जैन प्रवचन कक्ष की विषय वस्तु पर आधारित है। पल्लव राजा महेंद्रवर्मन प्रथम ने मंदिर का उत्खनन करवाया था और पांडव शासन के शताब्दी सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, यानी रेनोवेशन। चित्रकला के लिए वनस्पति और खनिज रंगों का प्रयोग किया गया और पतले गीले चूने के प्लास्टर का उपयोग किया गया था।
रंगों में पीला, हरा, नारंगी, नीला, काला और सफ़ेद शामिल थे। Central element of the painting in Sitan Vasal is a pond with lotuses. The ceiling have description of a lotus tank with images of men, animals, flowers, birds and fishes representing the Samavarshanan faith of Jainism. The pillars are also carved with dancing girl and the king and the queen. Samavarsarana is a special beautiful audience hall where Tirthankar delivered summons after they reached realization. Bulls, elephants, apsaras, goat gatherings in the audience hall to witness the grand scenes. सिंतल वासल के चित्र एक केंद्र तत्व कमलों वाला एक तालाब है। छत पर कमल के तालाब का चित्र है जिस पर जैन धर्म के संवत्सरण धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए मनुष्य, पशु, फूलों, पक्षियों और मछलियों की छवियां हैं। स्तंभ पर नर्तकी और राजा रानी के भी आकृतियां उकेरी गई हैं। स्मारकीकरण एक विशेष सुंदर सभागार है जिसे तीर्थकारों ने केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश दिए थे। इस भव्य कक्ष को देखने के लिए बैल, हाथी, अप्सराएं और देवता इस सभागार में एकत्रित होते थे। द सिरिग्रिया केव पेंटिंग और fossils are ancient wall paintings in Sri Lanka from the 5th century CE depicting female figures like crystal nymphs or apsaras. On the western face of Siriria cave, the surviving murals, characterized by their use of natural pigments and similarities to the Gupta style of Ajanta cave in India, are significant non-religious artworks that offer insight into ancient Sri Lanka culture art. Subject: the murals primarily featured gracefully female figures known as apsaras with embroidered headdress and jewelry holding temple flowers and water lilies. Techniques: they were painted using natural and mineral pigments on fresco-like structures. सिगिरिया गुफा चित्र। यह सिगिरिया भित्ति चित्र श्रीलंका में 5वीं शताब्दी ईस्वी के प्राचीन भित्ति चित्र हैं जिसमें सिरिगिरिया चट्टान के पश्चिमी भाग पर स्त्री आकृति को दर्शाया गया है। यह जीवंत भित्ति चित्र प्राकृतिक रंगों के उपयोग और भारत में अजंता गुफाओं की गुप्त शैली से समानता की विशेषता रखते हैं। महत्वपूर्ण गैर धार्मिक कलाकृतियाँ हैं जो प्राचीन श्रीलंका कला और संस्कृति की अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। विषय: इन भित्तिचित्रों में मुख्य रूप से सुंदर स्त्री आकृति हैं जिन्हें अप्सराएं कहा जाता है। विस्तृत शिरोभूषण और आभूषणों से सुसज्जित हैं। मंदिर के फूल और कुमुदनी को लिए हुए हैं। तकनीकी: इन्हें भित्तिचित्र जैसी सतह पर प्राकृतिक और खनिज रंगों का उपयोग करके चित्रित किया जाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। आई होप कि आपको सारी गुफाओं के बारे में समझ आया हो। और अब हम मिलेंगे आपसे यूनिट 8 में। और यूनिट 8 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आपसे चैनल कहीं इधर उधर गुम ना हो जाए और पेपरों में रिवीजन के टाइम पे भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।